Good morning, dear students. Hope you all are fit and fine, beta. Yes, students, today we are going to start a new chapter, that is my Experiments with Truth, written by Mahatma Gandhi, or we can say Mohandas Karamchand Gandhi. So students, before we start this chapter, let's begin with a pre-reading task first of all. To err is human. It means, students, it's natural for human beings to make mistakes. All human beings make mistakes, students. But the best of the lot learn from their mistakes and improve. Now, students, have you ever made any mistake? And what did you learn from it, students? What did you learn from it? Yes, students, I often make mistake, and students, I learned not to make the same mistake again. We should not repeat that mistake, students. Okay? And students, what do you do when you find a drawback or weakness? Or we can say, what do you do when you find an error in yourself? अगर बेटा आपसे कोई गलती हो जाती है या आप में कोई वीकनेस है तो बेटा क्या करेंगे आप? Try to improve yourself. Try to forget it and don't care at all. Try to hide it from others. क्या आप औरों से छुपाना चाहेंगे बेटा अपने मिस्टेक्स को, अपनी वीकनेस को? और try to lay the blame on others. ये स्टूडेंट्स औरों के ऊपर ब्लेम करेंगे कि नहीं उनकी वजह से ऐसा हुआ है. Students, we should try to improve. Okay, we should not blame on others. Okay, we should try to improve, students. We should learn from our mistakes. Okay, beta. So, students, now move on to the chapter. Now, read this extract from Gandhiji's autobiography, My Experiments with Truth. Now, students, do you know what is autobiography? Beta, an autobiography is the story of a person's life written by that person. Or we can say, students, when I will write about my own life, जब बेटा मैं अपनी लाइफ के बारे में खुद कुछ लिख रही हूँ बेटा, my achievements, my career, okay, that will be known as autobiography. Okay, students. Now, students, Start. I must have been about 7 when I was put into a primary school, and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. I do not remember having ever told a lie, either to my teachers or to my स्कूलमेट्स. बेटा जब वो प्राइमरी स्कूल में थे 7 ईयर्स के थे तो उन्हें बेटा कभी ये चीज़ ध्यान नहीं आती है कि उन्होंने कभी भी अपने टीचर्स को या अपने स्कूलमेट्स को मीन्स अपने क्लासमेट्स को कभी भी झूठ बोला हो. उन्हें ऐसा कुछ इंसिडेंट ध्यान में नहीं आता है. आई यूज टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. बेटा वो बहुत जल्दी सभी के साथ मिक्स नहीं होते थे. बेटा आप लोगों ने अपने स्कूल में भी क्लास में कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ स्टूडेंट्स में बेटा बहुत इजीली सभी के साथ मिक्स हो जाते हैं, अपनी सारी बातें बता देते हैं और पूछ लेते हैं. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी छोटी सी बात भी आगे नहीं बता पाते, वो बहुत शाय नेचर के होते हैं. बेटा वो अपने व्यूज़ जो है किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, मीन्स शर्मीले स्वभाव के. तो बेटा गांधी जी का नेचर कैसा था, वो बहुत शाय थे. एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. बेटा वो हर कंपनी को मीन्स किसी भी फ्रेंड सर्कल को कोशिश करते थे अवॉइड करते थे. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सॉल कंपेनियंस. कंपेनियंस में स्टूडेंट्स वी कैन से पार्टनर, उनके फ्रेंड्स. बेटा जो उनकी बुक्स थी और उनके लेसन से सिर्फ वही उनके अकेले जो है फ्रेंड्स है, मीन्स उनकी और किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं थी. उनको सिर्फ बुक्स और उनके लेसन्स जो है उनके साथ पार्टनर थे उनके, मीन्स उसी के साथ वो ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करते थे. टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज, दैट वॉज माई डेली हैबिट. और बेटा वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे. जैसे ही बेटा स्कूल का टाइम होता था वो स्कूल पहुंच जाते थे, और बेटा जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती, स्कूल क्लोज होता था तो वापस उसी वक्त घर आ जाते थे. और ये उनकी डेली हैबिट थी. इस हैबिट से बेटा क्या शो होता है कि वो कैसे थे, ही वॉज वेरी punctual. Now students, 2 incidents belonging to this period have always clung to my memory. Clung to my memory, clung means students held on closely, means जिस चीज़ को आप जल्दी इजीली भूल नहीं पाते हो, लाइक दैट. ओके बेटा 2 इंसिडेंट्स हैं उनकी लाइफ के जो उनको लगता है कि वो बहुत उनको याद रहते हैं, उसको वो भूल नहीं पा रहे हैं.
As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books. बेटा उनको जो है उनके सिर्फ स्कूल बुक से रीड करना ज़्यादा अच्छा लगता था. बट सम हाउ माई आईज फेल ऑन द बुक परचेज बाय माई फादर. बट किसी तरीके से बेटा उसकी जो है उन्होंने एक बुक जो है उनके फादर ने जो परचेज़ की थी उसको देखा, और बेटा इस बुक ने उनको बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया. और इस बुक का क्या नेम था स्टूडेंट्स? इट वॉज शर्वना पितृभक्ति नाटका. ओके, इट वॉज अ प्ले अबाउट शर्वना's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स. आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट. बेटा उन्होंने इस बुक को बहुत इंटरेस्ट के साथ रीड किया. डीप इंटरेस्ट, इंटेंस मीन्स बेटा डीप. उन्होंने बहुत इंटरेस्ट के साथ इस बुक को रीड किया. बेटा उन्हें वैसे कोई भी बुक्स पसंद नहीं थी रीड करने के लिए, सिर्फ अपनी स्कूल बुक्स पसंद थी. बट फिर भी बेटा उनको जो है ये बुक बहुत अच्छी लगी. और इस बुक का क्या नेम था? शर्वना पितृभक्ति नाटका. इट वॉज अ प्ले अबाउट शर्वना's डिवोशन टू हिज parents. And students, one picture in the book showed Sharvana carrying his parents on pilgrimage. Pilgrimage means students a journey to a holy place. और इसमें बेटा एक पिक्चर क्या शो कर रही है, किस तरीके से जो है बेटा श्रवण कुमार जी अपने पापा और मम्मा को जो है एक जर्नी पर लेके जा रहे हैं. और वो जर्नी कहाँ के लिए है? अ होली प्लेस, एक पवित्र तीर्थ स्थान पे वी कैन से. ओके, द बुक एंड द पिक्चर left an undying impression on my mind. और बेटा ये जो बुक थी शर्वना पितृभक्ति नाटका, और इसमें जो पिक्चर थी उन्होंने बेटा एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ा उनके माइंड पर जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं था. अनडाइंग मीन्स जो कभी भी ख़त्म नहीं होता. ओके, अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड. एंड हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ. और उन्होंने बेटा अपने आप से ही ये चीज़ डिसीज़न लिया कि यहाँ पर मेरे लिए एक एग्जाम्पल है कि मैं भी इसको कॉपी करूँ. मीन्स कि किस तरीके से जो श्रवण कुमार है वो अपने पापा मम्मा की जो है देखभाल कर रहे हैं, किस तरीके से उनको सर्व कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए. हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ. Yes, students, as we know that when Mahatma Gandhi ji was admitted to primary school at the age of 7, at that time, students, he was very shy and his books were his only friends. He did not like to read any other books apart from his textbooks, or we can say school books. But once, students, he came across a book named Sharvana Pitribhakti Natka, which left a great impression upon him. And students, he copied the example of Sharvana and decided to become like Sharvan Kumar. Now students, another similar play, Harish Chandra, captured my heart. Why should not all be truthful like Harish Chandra? उन्होंने क्या सोचा कि क्यों नहीं सभी ऐसे होते हैं जैसे हरीश चंद्रा हैं, क्यों नहीं सभी ऐसे सच बोलें, was the question I asked myself day and night. To follow truth and to go through all ordeals. Ordeals का meaning students क्या होता है? Painful experiences. Harish Chandra went through was the one ideal it inspired in me. Yes, beta. Harish Chandra went through many painful experiences, but students, he always spoke truth. Whatever the condition might be, or we can say whatever the circumstances might be, he always spoke truth. And that's why students, Gandhiji also decided to speak truth. So students, he also decided to become like Harish Chandra. Now students, hope you all have understood well. Now we read next half of the chapter and try to understand. Thanks, beta, and have a nice day. Bye-bye.